A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed the topic accounting ratio, which are almost completed. So in this video, we will discuss all the important questions related to the cash flow statement and the accounting ratio. Before reaching the cash flow statement, let's revise all the important topics related to the accounting ratio. That is, and you know very well what is an accounting ratio. Accounting ratio is a ratio by which we establish a relationship between the two variables. Means after preparing the financial statement of the company, for the analysis of such financial statement, we have to establish a relationship between the two items of financial statement. For example, the relationship between the net profit and the sales of the current year. So accounting ratio, with the help of the accounting ratio, we discussed the relationship between the two variables, as well as we calculate the short-term solvency position, long-term solvency position of the company, as well as we discuss the different type of the turnover ratio. For example, inventory turnover ratio. So inventory turnover ratio is a ratio by which we establish the relationship between the inventory and the cost of the goods sold. So with the help of these types of the ratio, we can easily analyze the financial statement, and each and every item appeared in the balance sheet or the statement of PL of the company. So in this video, we discussed a different important questions related to the cash flow statement and the accounting ratio. Okay, so when we are talking about the cash flow statement, so you know very well, in the cash flow statement, different types of the question will be asked in the examination. And if we are talking about the type of the question asked in the examination related to the cash flow statement, so the examiner may be asked the different types of the question from the cash flow statement in the different way. So the type 1 question which are related to the cash flow statement is recognize the activity. In this type of the question, you have to recognize the activity. Ki such transaction is related to the which types of the activity? Operating activity, investing activity, or financing activity. So the first type of the question is recognize the activity. Okay. If we are talking about the type 2 question which are related to the cash flow statement, which are related to the preparation of the provision for tax account, accumulated depreciation account, assets account, as well as calculate the cash inflow and outflow from the different activity. यानी अगर हम टाइप 1 की बात करें तो उसमें था एक ट्रांजेक्शन आ जाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि सच ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू द विच एक्टिविटी. ओके, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. सेकेंड टाइप में क्या होगा, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने को कह देगा एंड यू हैव टू प्रिपेयर द टैक्स मेड और पेड. थर्ड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, या कैलकुलेट करो कि कितना सेल हुआ एसेट्स या कितना परचेज हुआ एसेट्स. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के साथ भी ऐसा हो सकता है. या फिर calculate the activities, calculate the inflows and the outflow from of the different activity. यानी पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को नहीं कहेगा, आपसे पूछेगा फाइंड आउट द कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइंड आउट द कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइंड आउट द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. और ये सारी चीजें जो रहेंगी वो कुछ ही ट्रांजेक्शन रहेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देगा. इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. और टाइप 3 जो होता है वो होता है लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा आपसे प्रिपेयर करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इतने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो आप लोग हर तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे सो
मुझे ऐसा फील होता है कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, ठीक है। और ये पार्ट भी जो होता है हमारा अकाउंटेंसी का वो गेनिंग पार्ट होता है। ओके, सो इस तरह के टाइप की चीजों को अपने कॉपीज में नोट कर लीजिए, अपने माइंड में नोट कर लीजिए। सो फर्स्टली वी डिस्कस द टाइप 1 क्वेश्चन, recognize the activity, and thereafter we will moving to the questions related to the accounting ratio, and thereafter we will discuss the question related to the type 2. Okay, so let's we take the sum activity and you have to recognize कि ये activity किस activity से related है, operating, financing और investing. So क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आइडेंटिफाई या फिर क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू द ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड यहां पर एक और वर्ड आ रहा है, एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें भी पूछा जा सकता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है कि नहीं। सो आपको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करके आपको ये बताना है कि वो ट्रांजेक्शन या वो सेंटेंस किस आइटम से रिलेट रखता है। फर्स्ट कि अगर हम लोग बात करें, सो फर्स्ट विल बी द पेमेंट ऑफ रेंट। सो थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करो, पेमेंट ऑफ रेंट किस एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। रेंट अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसके लिए हमें प्रेमाइसेस की जरूरत होती है, या तो प्रेमाइसेस हम अपना खुद का लगाते हैं या तो उसको रेंट पे ले लेते हैं। सो इट इज रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि रेंट हम पे करेंगे तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होगी। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज होगी किसी भी चीज की तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस एक्टिविटी से रिलेटेड होगी। तो आप चाहें तो एग्जाम में सारी एक्टिविटी को, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिया, उसमें जितनी एक्टिविटीज आ रही हैं, जितना आइटम्स ऑपरेटिंग से, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, या इंडिविजुअली बता दीजिए कि फर्स्ट ऑपरेटिंग से है, सेकंड इन्वेस्टिंग से, ऐसे भी आप बता सकते हैं। सेकंड है आपका कैश प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट। कैश प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स। आपको कैश मिला पब्लिक डिपॉजिट। आपको पता है कि जनरली कंपनीज दो तरीके से क्रेडिट अरेंज करती है। बेसिकली एक होता है वो लोन ले लेती है, डिवेंचर इशू करती है, और एक होता है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक से वो डिपॉजिट्स लेती है। स्पेशली जो बैंकिंग कंपनीज होती है वो पब्लिक के डिपॉजिट्स पे ही वर्क करती है। सो कैश प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट इज न ऑपरेटिंग, नो। क्या ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा है? नहीं। क्या ये पैसा रेस किया जा रहा है? यस। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस को चलाना, इन्वेस्टिंग मतलब पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देना, लगाना, फाइनेंसिंग मतलब मनी रेस करना, मनी का अरेंजमेंट करना। तो जब आप कैश प्रोसीड करेंगे पब्लिक डिपॉजिट से तो इससे आपके पास पैसा आएगा। तो अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर दें, ए बी, इसको सी कह दें और इसको डी कह दें, सो वी कैन से दैट कि पेमेंट ऑफ रेंट इज एन ए and cash proceed from public deposit, it is in C because it is related to the financing activity. Third will be बैंक बैलेंस। अब आप सोचो, बैंक हमारे पास बैलेंस है, हमारे पास पहले पैसा है बैंक, ये किस में आएगा? ये तो आप तुरंत बता दोगे कि इट इज रिलेटेड टू द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिकॉज यू नो वेरी वेल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट द फ्यू आइटम्स। कुछ काउंटिंग आइटम्स हैं जिनमें जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में काउंट होते हैं, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी। ओके, so such kind of the item are included in the cash and cash equivalent. So D, the right answer is D. Fourth is checks भी आते हैं cash and cash equivalents में।
उसके बाद है आपका ट्रेजरी बिल। टी बिल का नाम सुना है आप लोगों ने बिजनेस में, वो किसमें है? टी बिल इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो कि 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाता है और इसके जो पीरियड होता है वो भी 3 महीने तक ही होता है, यानी हाईली लिक्विड होता है। सो उसको हम लोग क्या मानते हैं? कैश इन कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्राइटेरिया में लिस्टेड करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, द नेक्स्ट इज परचेज ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सो पहले ये समझो, आपको मैं बता दूं, दे आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको बच्चे स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट में 2 वर्ड की बात करते हैं, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक हम लोग बात करते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स। सो ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो नॉन करंट एसेट्स होता है, यानी जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो इट विल बी नोन एज एन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो बेसिकली 1 से ज्यादा साल के लिए होती है। सो इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर वही कंपनी करंट इन्वेस्टमेंट का वर्ड यूज करती है तो उसका मतलब वो कैसा इन्वेस्टमेंट है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सो अगर कंपनी ने ट्रेड इन्वेस्टमेंट परचेस किया, इसका मतलब ऑपरेटिंग नहीं, इन्वेस्ट किया उन्होंने पैसा। क्लियर है? तो वो किससे आएगा? बी से। Let's we take the next transaction. The next transaction is which are related to the repayment of bank loan. Repayment of bank loan. अब आपने बैंक से लोन लिया था, उस लोन को आपने रीपे कर दिया। जब आप बैंक के पैसे को, लोन को रीपे कर देंगे तो आप खुद सोचिए, जब आप बैंक के पैसे को रिटर्न कर देंगे तो ये किस एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्ट कर रहे हो? नहीं सर। क्या हम बिजनेस चला रहे हैं? बिजनेस चलाना एक अलग चीज है, ये डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। तो जब भी कोई चीज डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है तो वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से होगा। बैंक लोन मनी रेज करता है, हम पैसा लाते हैं और आफ्टर सम टाइम जब उसी पैसे रेज को हम रीपे कर देते हैं तो वो भी तो फाइनेंसिंग का ही पार्ट हो गया, क्योंकि पेमेंट ऑफ रेंट ऑपरेटिंग का आउटफ्लो है, जिससे पैसा जाता है। कैश प्रोसीड करते हैं पब्लिक डिपॉजिट से तो ये फाइनेंसिंग से पैसा आ रहा है। बैंक बैलेंस और ये सब तो एसेट्स हैं, इनमें इनफ्लो आउटफ्लो नहीं देखा जाता। परचेज ऑफ ट्रेड, अगर आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं तो ये पैसा जा रहा है, आउटफ्लो है। और बैंक लोन आपने कभी लिया था, यानी आपने मनी रेज किया था फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू, और फिर आप उसी लोन को रीपे कर रहे हो, इसका मतलब पैसा ये जा रहा है, फाइनेंसिंग का ही है लेकिन जा रहा है। सो हर एक्टिविटी हो, चाहे ऑपरेटिंग हो, चाहे इन्वेस्टिंग हो, चाहे फाइनेंसिंग हो, हर एक्टिविटी में कैश इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग में पैसा सिर्फ जाएगा, ऑपरेटिंग में पैसा सिर्फ आएगा और फाइनेंसिंग में सिर्फ पैसा आएगा, नहीं। उस एक्टिविटी का जो वर्ड है आपको आइडेंटिफाई करके उस एक्टिविटी से रिलेट करना पड़ेगा। ओके, सो इसके बाद हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन पे। ओके, प्लीज नोट डाउन this question in your book properly, in your copy properly. Okay, and quick ratio 1.2:1 होता है, 1.2:1 होता है, और वर्किंग कैपिटल 1,80,000 हो। ठीक, सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। सो आपको करंट एसेट्स और इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। सो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? एज यू नो वेरी वेल, करंट रेशियो इज 3:1, क्विक रेशियो इज 1.2:1। तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सिंप्लीफाई, यू नो वेरी वेल, इन्वेंट्री इक्वल्स टू, आपको पता है इन्वेंट्री इक्वल्स टू व्हाट? इन्वेंट्री इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, एंड करंट एसेट्स इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल को अगर फाइंड आउट करें तो क्या कर सकते हैं? वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। ये 2 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सो विद द हेल्प ऑफ द अबव सिचुएशन वी कैन सी दैट कि करंट रेशियो इक्वल्स टू 3/x, that is in current assets upon current liability. So इससे इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन में बना रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1, current ratio equals to current assets by current liability. So we can see that current assets equals to 3 current liability. ये एक इक्वेशन बन गया।
अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला देखिए, क्विक रेशियो इक्वल्स टू 1.2:1 इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. सो वी कैन से दैट क्विक एसेट्स इक्वल्स टू 1.2 करंट लायबिलिटी. कह सकते हैं ये इक्वेशन बन गया. अब इसी इक्वेशन को अगर हम चाहें तो इस वाले फॉर्मेट पे पुट कर सकते हैं. यहां पर क्विक करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटी. सो वी कैन से दैट working capital current assets is 3CL equals to current assets equals to 3CL. Working capital is 1,80,000 plus current liability. So इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 2CL equals to 1,80,000. So CL equals to 90,000. तो ये आ गया आपकी करंट लायबिलिटी. ये कैंसिल. फिर करंट एसेट्स कैसे निकालोगे आप? आपको सब सीधे पता है कि करंट एसेट्स, यहां अगर आप वैल्यू पुट करो, करंट एसेट्स इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल 1,80,000 और करंट लायबिलिटी आपने कितना निकाल दिया 90,000. सो 2,70,000 इज योर करंट एसेट्स. ये कैंसिल आ गया. दूसरा आपको इन्वेंट्री निकालना है तो क्विक करंट लायबिलिटी पता है, सो आप क्यों नहीं निकाल सकते. सो दूसरा आपको हो जाएगा क्विक एसेट्स इक्वल्स टू 90,000 इंटू 1.2, that is 90, 9 4 12, 9 4 13, 1,35,000. So quick assets is 1,35,000. क्विक एसेट पता चल गई, करंट एसेट पता चल गई, तो इन्वेंट्री क्या होगी 2,70,000 माइनस 135 इक्वल्स टू 65, 135. So your inventory will be a 135. So इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा आएगा. दैट इज एन पहले हमने करंट लायबिलिटी निकाला 90,000, फिर आपने करंट एसेट्स निकाला 2,70,000, फिर आपने क्विक एसेट्स निकाला 1,35,000 और फिर आपने इन्वेंट्री निकाला 1,35,000. सो इन्वेंट्री और क्विक एसेट दोनों सेम ही लग रही है यहाँ पे. यस, तभी आप देखो तो वी कैन से दैट 1.2 इज दैट. सो यहां थोड़ा मिस्टेक है कि 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 नॉट इज 1.5. ठीक है, तो यहां आपको करना पड़ेगा 90 and 18, 108, 1,08,000. क्विक एसेट्स 1,08,000. सो यहां पर आपको थोड़ा सा 1,08,000 माइनस करना पड़ेगा. सो नाउ योर इन्वेंट्री विल बी अ 0,002 6 इज देयर 1,62,000. तो ये 4 आंसर आपके होंगे और ये 4 मार्क्स में अप्रोक्सीमेटली पूछता है क्वेश्चन कि अगर आपके स्टेप सही. एक स्टेप ये, पहला स्टेप करंट लायबिलिटी निकालना, दूसरा स्टेप आपका होता है क्विक एसेट्स निकालना, तीसरा स्टेप आपका होता है करंट एसेट्स निकालना और चौथा स्टेप आपका होता है इन्वेंटरी निकालना. ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है. अच्छा, चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक इज calculate current, liquid and working capital. यानी करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल. और ये क्वेश्चन आया था आपका 4 मार्क्स में, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी था. फाइंड आउट करंट एसेट्स, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल. करंट एसेट्स, करंट रेशियो, liquid ratio and working capital. And the information is cash and cash equivalent 16 lakh, trade receivable 1,54,000, inventories 1,20,000, trade payable 1,50,000, short term borrowing 10,000, other current liability 10,000, other current assets 50,000. So cash and cash equivalent is 60,000. क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात है. एंड ट्रेड रिसीवेबल 1,54,000 एंड इन्वेंट्री 1,20,000 एंड ट्रेड पेबल 10,000 एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग इज बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 and
Again, other current liability 10,000. Trade payable is 1,50,000. Short term borrowing 10,000 and the other current liability is 10,000. And last one is a other current assets 50,000. So आप इतना सारा इंफॉर्मेशन देख के आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे चीजों को निकालेंगे। तो वो बहुत छोटी सी चीज होती है, क्योंकि इसमें हर ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होता है। सो अगर हम यहाँ पे पहले रेशियो की बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट रेशियो। सो करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सो करंट एसेट्स इक्वल्स टू, अगर इस क्वेश्चन में देखें, सो कैश इन कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंटरीज एंड अदर करंट एसेट्स आर पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स। अदर current assets are part of the current assets. So cash in cash equivalent is 16,000, trade receivable 1,50,000, inventory 1,20,000, other current assets 1,50,000. So it will be a 273 and this will be a 170, 290, 390, 440. So current assets 4,40,000. Am I correct? There is a 340. Okay, 1, 2, 3. Am I correct? Current assets 340, 16,000, 154, 120, and only 50. Other current assets only 50. That's why it is a problem created. It will create a problem. Now we move to the current liability. According to the information, the current liability includes the trade payable, short-term borrowing, and other current liability. So trade payable will be a 1,50,000, short-term borrowing is a 10,000, and other current liability is also 10,000. So current liability will be a 1,70,000. Current assets 3,40,000, current liability 1,70,000. So current ratio will be a 3,40,000 divided by 1,70,000 equals to 2:1. So current ratio is 2:1. Now the next ratio is liquid ratio. The next ratio of this question is liquid ratio. So the liquid ratio will be a, you know very well, liquid assets divided by current liability. And liquid assets equals to the current assets minus inventory minus prepaid expense. But according to this question, other current assets include the prepaid expense and payment of advance tax. So current asset में हम दो चीजें माइनस करेंगे, inventories and other current assets divided by current liability. So current assets will be a 3,40,000, inventories will be a 1,20,000, and other current assets will be a 50,000 divided by current liability equals to the 1,70,000. So current liability is 1,70,000, current assets 3,40,000, inventory 1,20,000, 50,000 is an other current assets. So the quick assets will be a 1,70,000. Am I correct? Yes. The quick assets is 1,70,000 divided by 1,70,000. So the ratio is 1:1. So current ratio is 2:1. Liquid ratio is 1:1. 2:1 is a current. 2:1 is a current ratio, and 1:1 is a liquid ratio. And at last in this question, the question is asking about the calculate the working capital. So how we will calculate the working capital? So the working capital equals to current assets
minus current liability. What is the formula of working capital? Working capital equals to current assets minus current liability, and the current assets will be your 3,40,000 minus current liability is 1,70,000. So working capital is also 1,70,000. So कुछ ऐसी चीजें इस क्वेश्चन में आपसे पूछी गई हैं जो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के इक्विवेलेंट है. सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू. और आज हम लोगों ने ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो से ही डिस्कस किया है. ओके कि करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो एज वेल एज द रेशियोज रिलेटेड टू द liquidity ratio, and how we will why we calculate the liquidity ratio. Liquidity ratio is a ratio by which company estimates and estimate about the forecasting about the short term solvency position of the company. So now we are moving to the next question, and the question is, okay, so let's move to the next type of the question, that is in questions related to the provision for tax. So provision for tax एक तरह से ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो ये एडजस्टमेंट नंबर आप कह लो नंबर 1 है प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि मोस्टली एग्जामिनेशन में प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं. सो अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट्स की बात करें, सो सबसे पॉपुलर एडजस्टमेंट है दैट इज इन प्रोविजन फॉर टैक्स. एंड इसमें कितने तरह के केसेस के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो केस 1, मैं 1 by 1 सारे केसेस डिस्कस करूंगा. केस 1, व्हेन टैक्स इज गिवन, व्हेन टैक्स इज गिवन in the बैलेंस शीट, यानी सिर्फ टैक्स जो है वो बैलेंस शीट में गिवन है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं रिलेटेड टू द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में क्लियरली लिखा है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर. प्रीवियस ईयर इज 2018, करंट ईयर इज 2019. इट इज वेरी क्लियर. एंड बैलेंस शीट में लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1,50,000 एंड 1,80,000. यानी केस 1 है व्हेन टैक्स इज गिवन इन द बैलेंस शीट, और जब सिर्फ टैक्स दिया हो सिर्फ बैलेंस शीट में और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम इसको कैसे शो करेंगे. मैंने आपको क्लियरली बताया है जब क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स सिर्फ एडजस्टमेंट सिर्फ बैलेंस शीट में दिया हो और कहीं भी ना दिया हो, फिर से सुनना, कहीं भी नहीं दिया हो, तो हम प्रीवियस ईयर को क्या मानते हैं, वो मानते हैं क्या है पेड, और करंट ईयर को क्या मानते हैं मेड. ठीक है. और प्रीवियस ईयर में क्या है 2018, करंट ईयर क्या है 2019. वैल्यू क्या है प्रीवियस ईयर की 150, करंट ईयर की वैल्यू क्या है 180. सो प्रीवियस ईयर को पेड मानते हैं. इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, डिडक्टेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इससे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं. एंड करंट ईयर को हम लोग क्या मानते हैं मेड 1,80,000, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इट विल बी द एडेड टू, इसे हम ऐड करते हैं, एडेड टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होती है उसमें हम ऐड करते हैं. इट इज अ वेरी सिंपल सिचुएशन. केस 2, केस 2 क्या होता है, वो होता है व्हेन टैक्स इज गिवन ओनली इन एडिशनल इंफॉर्मेशन. व्हेन टैक्स इज गिवन only in additional information. यानी क्वेश्चन में क्या होगा, बैलेंस शीट में कोई प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है, टैक्स गिवन. When tax is given only in additional information, it means
बैलेंस शीट में कोई भी प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं गिवन है। एक बार मैं दिखा भी देता हूं, जैसे मान लो ये है 2018 और 2019 प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं है, करंट ईयर में या तो लिखा ही नहीं रहेगा या तो लिखा रहेगा बट वैल्यू 0। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लियरली लिखा हुआ है टैक्स वॉज पेड 40,000, टैक्स वॉज पेड 40,000। जब इस तरह की चीजें गिवन हो तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ना प्रीवियस ईयर है, ना करंट ईयर है, ना पेड है, ना मेड है, कुछ नहीं। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है उसी को पेड मान लेंगे, उसी को मेड मान लेंगे। तो पेड टैक्स रुपीज 40,000, बोथ पेड भी है और मेड भी, वही चीज दो रोल पे करेगी, एक पेड का भी और एक मेड का भी। एंड व्हाट आर द एडजस्टमेंट ऑफ द पेड टैक्स? पेड को हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और मेड है तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो ये जो दोनों केसेस हैं इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। क्या केस पर था, जब टैक्स गिवन हो बैलेंस शीट में या जब टैक्स गिवन हो सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, सो इन दोनों को अच्छे से आप कॉपीज में नोट कर लीजिए, ठीक है। So I hope today we cleared all the things and all the questions very easy. आज के लिए इतना ही। Thank you, thanks a lot and take care.